میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ ہے توبہ اور گناہوں کی معافی، repentance and forgiveness of sin۔ اور ہم پڑھیں گے لوکا کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 24واں باب اور اس کی 47ویں آیت۔ لوکا 24:47 اور یہاں لکھا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ یسوع مسیح کے کلام کے پڑھے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ تھوڑا سا میں اس آیت کا پس منظر یا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لوکا کی انجیل کا جو آخری باب ہے، اس میں یسوع مسیح کے مر کر جی اٹھنے کے بعد آسمان میں جانے کے واقعات ہیں، اور جو گفتگو یسوع نے آسمان میں جاتے وقت شاگردوں سے کی، وہ باتیں لکھی ہیں لوکا کی انجیل کے آخری باب 24ویں باب میں۔ اور لوکا جو اس انجیل کا لکھاری ہے، وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو آخری باتیں کی آسمان پر جانے سے پہلے وہ کیا تھا، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ یروشلم سے شروع کر کے تمام قوموں میں توبہ اور گناہوں کی منادی یسوع کے نام سے کی جائے گی۔ تو یہ بات لوکا نے لکھی ہے، اور یہ جو بات لوکا نے یہ لکھی ہے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم کا اہم بنیادی نقطہ تھا زمین پر رہتے ہوئے یسوع کی تعلیم کا۔ اس آیت کے 4 حصے ہیں، آئیے ذرا اسکرین کی طرف دیکھیں۔ اس آیت کے 4 حصے، پہلا ہے توبہ کی منادی، بولیے نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 گناہوں کی معافی کی منادی، نمبر 2 اور تیسرا حصہ ہے یسوع کے نام سے، اور چوتھا ہے یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں۔ تو ہم ان 4 حصوں پہ ترتیب وار غور کریں گے۔ نمبر 1 توبہ کی منادی۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پہ چلا جائے گا، پوری دنیا میں توبہ کی منادی ہوگی یروشلم سے شروع کر کے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ منادی تو پہلے بھی شروع ہو چکی تھی۔ یوحنا آیا اور اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، یوحنا نے تو کہنا تھا کیونکہ یوحنا آیا ہی یسوع کی راہ تیار کرنے تھا، اور پھر یسوع نے بھی یہی منادی کی۔ متی کی انجیل کے 4 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کہنا ہی تھا کیونکہ یوحنا کہتا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا میں اس کی راہ تیار کرنے آیا ہوں، تو یسوع کی راہ تیار ہو گئی تھی اور یسوع نے بھی کہا توبہ کرو۔ اور پھر لوکا لکھتا ہے کہ ساری دنیا میں توبہ کی منادی یسوع کے نام سے کی جائے گی۔ اب بھی کی گئی لیکن کی جائے گی، یہ لوکا نے فیوچر کے بارے میں لکھا، یعنی یسوع کے آسمان میں جانے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد منادی ہوئی، آگے جا کے میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ توبہ کی منادی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یسوع کے آسمان میں جانے کے بعد ظاہری بات ہے ایک پیشن ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ایک پروفیسی ہے۔ جب پروفیسی ہے کہ توبہ کی منادی ہوگی تو پھر ہوئی، اور آپ اس کا پھل ہیں۔ ہاللیلویا، میں اس کا پھل ہوں، آپ اس کا پھل ہیں۔ فیوچر میں ہوگی کہا گیا اور ایسا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے گناہوں کی معافی کی منادی۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یعنی کہ صلیب پر جانے سے پہلے معافی کی بڑی تعلیم دی ہے، لیکن یہ آیت کہتی بعد میں بھی ہوگی۔ پہلے آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے اس عورت کو جو گناہ میں پکڑی گئی تھی کیا کہا؟ جب میں تجھ پر کوئی حکم نہیں چلاتا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔
تو یسوع مسیح نے جب موت سے کیے تو کئی بیماروں سے کہا، جب وہ شفا پا گئے تو شفا کے بعد کہا بیٹا دل گناہ نہ کرنا، یعنی کہ گناہوں کی معافی، اور صلیب پر چڑھ کے یسوع نے معافی کا اعلان کیا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ بولے ہاللیلویا۔ تو توبہ کی معافی کے بعد گناہوں کی معافی کی تعلیم یسوع دیتا رہا، لیکن اس آیت کے مطابق فیوچر میں گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی اور آپ اور میں اس کا پھل ہے۔ اگر گناہوں کی معافی کی منادی نہ کی جاتی تو میں کبھی بھی یسوع مسیح سے یہ نہ کہتا اے خداوند یسوع مسیح میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر، مجھے گناہوں سے معافی دے، میں کبھی بھی نہ کہتا۔ میں نے کہا، آپ نے کہا، اب اس کا پھل ہے۔ بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور جو گناہوں کی معافی ہے سن لیجیے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ گناہوں کی معافی صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ بولے ہاللیلویا، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بڑا نیک ہو، بڑا پرہیزگار ہو، بڑی نیکیاں بھی کرتا ہو، لیکن جب تک وہ یہ نہ کہے اے یسوع مسیح اپنے خون سے میرے دل کو دھو کے پاک کر، میرے گناہ معاف کر، مجھے گناہوں سے معافی دے، نہیں ہو سکتی معافی، کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اور ان میں اچھے لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ ہیں، ہر مذہب میں اچھے لوگ ہیں، لیکن توبہ اور گناہوں کی معافی کے بغیر کوئی شخص آسمان میں جا ہی نہیں سکتا۔ یسوع نے کہا میرے جانے کے بعد یہ ہوگا۔ اور تیسرا نمبر آگے جی یسوع کے نام ہے۔ ہم کہاں پہنچے ابھی؟ بولیے، ہم نے پہلے اس سے غور کیا توبہ کی بنیادی، دوسرے سے غور کیا گناہوں کی معافی کی بنیادی، اور تیسرا یسوع کے نام سے۔ تو کہا گیا کہ یسوع کے نام سے پوری دنیا میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی بنیادی دی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے اے خدا میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ سن لیجیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے اے خدا میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر، مجھے گناہوں کی معافی دے، نہیں ملے گی، آپ حیران ہو کہ یہ کیا بات ہے؟ یسوع کے نام سے۔ اگر آپ کی دعا میں صلیب کا ذکر نہیں ہے، اگر آپ کی دعا میں یسوع کی مصلوبیت کا ذکر نہیں ہے، توبہ بھی نامنظور، معافی بھی نہیں ہوگی، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ اے خدا میں گنہگار ہوں، شکر کرتا ہوں یسوع کا جو صلیب پہ ہوا، اے خدا میں توبہ کرتا ہوں، یسوع کے خون سے مجھے دھو کے پاک کر، مجھے گناہوں سے معافی دے دے، تو مل جائے گی۔ تو توبہ اور گناہوں کی معافی صرف یسوع کے نام سے، صرف یسوع کے نام۔ آپ کو یاد ہے یسوع کے بارے میں فرشتے نے کیا کہا تھا اس سے، یوسف سے، مریم سے بھی باتیں کی، لیکن یوسف سے کیا کہا تھا؟ دیکھیے ذرا بھائی سلائڈ، بندے کی جیل پہلا باب کی 21ویں آیت، اس نے کہا اس کے بیٹا ہوگا، فرشتے نے یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، لہذا نجات کا سرچشمہ یسوع ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ نجات کا واحد ذریعہ کہیے کون ہے؟ اونچی آواز میں، نجات کا واحد ذریعہ کون ہے؟ گناہوں کی معافی کس نام سے ملتی ہے؟ توبہ کس نام سے قبول ہوتی ہے؟ یسوع، یسوع، یسوع۔ یسوع کے لہو میں نجات بھی ہے، شفا بھی ہے، معافی بھی ہے، توبہ کی قبولیت بھی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پہلا تimotheus پہلے باب کی 15 آیت، پہلا تimotheus پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا اور اس کے نام میں نجات ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا،
यसु जैसा नाम बख्शा ही नहीं गया किसी और को, सिर्फ एक नाम है और वो यसु नाम है। यसु नाम के लिए तालियां बजाएं। और हम जाएंगे चौथे नंबर पे, ऊपर आप देखिए चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में, कौम का जो लफ्ज है ये कौम ये नहीं है पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, मसीही, हिंदू, मुस्लिम, नहीं, कौम का जो इंग्लिश लफ्ज है वो है नेशन, मुल्क, जैसे यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा। तो इसका मतलब है यरूशलेम से शुरू करके तमाम कौमों में, मतलब तमाम मुल्कों में तौबा और गुनाहों की माफी होगी। बोले हालेलुया। इसका मतलब है, मैं चौथे नंबर को एक हेडिंग देता हूं, चौथे नंबर को एक हेडिंग दे रहा हूं, वो ये है मसीही पैगाम की आलमगीर। ये आलमगीर पैगाम है, ये ग्लोबली पैगाम है, पूरे ग्लोब के लिए है। यरूशलेम से शुरू होगा और पूरी दुनिया में यीशु के नाम से तौबा और गुनाहों की मनाही होगी पूरी दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं, जरा गौर से सुनिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु ने एक दफा शागिर्दों से कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, और उससे पहले भी मत्ती की इंजील के 10वें बाब में भी कहा था सिर्फ बनी इस्राएल के पास जाओ, किसी और के पास ना जाओ। और जो लोग बाइबल को नहीं समझते वो एतराज करते हैं। सुनिए क्या एतराज करते हैं। मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जो नामी मसीही हैं और बाइबल नहीं पढ़ते, उनकी भी, और जो मसीही नहीं है वो एतराज करते हैं कि यीशु ने तो कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, सिर्फ बनी इस्राएल के पास जाओ, बनी इस्राएल की कोई भेड़ों के पास जाओ। ये कैसे शागिर्दों ने कर दिया? ये इनकी साजिश थी, ये पौलुस की साजिश थी, सारी दुनिया में मसीह फैला दी। तो उन्हें बताएं भाई, यीशु ने कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, यीशु ने ये भी कहा था कि इस्राएल के अलावा कहीं मनाही ना करना, लेकिन उन्हें बताएं यीशु ने आसमान पर जाने से पहले मत्ती की इंजील के 28वें बाब में और मरकुस की इंजील के 16वें बाब में शागिर्दों को शान-ए-आज़म दिया था, ग्रेट कमीशन दिया था, सबसे बड़ा हुक्म दिया था, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें बताइए जो मसीहत है ये आलमगीर है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे ग्लोब के लिए है। और मरकुस की इंजील के 16वें बाब की 15वीं आयत के मुताबिक बस तुम जाकर सारी खल्क में, सारी जमीन पर जीव की मुनादी करो। जो ईमान लाए यीशु मसीह के गुफारे में निजात पाएगा, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। उनसे कहें ठीक है जी, कहा था, बाइबल जरा अच्छी तरह से पढ़ा करें, आंखें खोल कर। मैं आपसे नहीं कह रहा, जो त्रास करके उनसे कहें भाई आंखें खोल के पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है। उस वक्त तो यीशु के शागिर्दों का जो ट्रेनिंग पीरियड था, उस वक्त यीशु कैसे देख सकता था? और दूसरी बात, उस वक्त पैगाम क्या था? पैगाम ही कोई नहीं था। अब तो पैगाम है कि गुनाहों की माफी यीशु के खून के वसीला से है। तब तो यीशु का खून भी नहीं बहा था, तो शागिर्दों को कैसे यीशु कहता कि सारी दुनिया में जाओ, भेजा छोटे छोटे कामों के लिए बुद्धिमान निकाले, मुनादी करें, लेकिन निजात का काम तो बाद में होना था। तो ये आयत जो हमारी है ये एक प्रोफेसी है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मैंने आयत दोहरा दी है, लेकिन अब पढ़ ले मरकुस 16 बाब 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। तो ये आलमगीर पैगाम है, वर्ल्ड वाइड पैगाम है, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए तो वो आयत है जो सबसे फेमस है, जो निकोदेमुस से बात करते हुए कही गई थी। कौन सी है? यूहन्ना 3 बाब और 16 इकट्ठे बोले, खुदा ने किससे खुदा ने किससे? दुनिया से। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस आयत के मुताबिक जो हमारी मेन आयत है, मसीही पैगाम आलमगीर पैगाम है, पूरी वर्ल्ड के लिए पैगाम है। और आप शुक्र किया करें कि आप महदूद नहीं है, आप तो लामहदूद है पूरी दुनिया का। अब
हमारी जो मेन आयत है, जो प्रोफेसी है, उससे पूरा भी तो होना था। लूका कहते हैं कि उसके नाम से की जाएगी, अब काम शुरू हो गया। और मैंने आपसे कहा कि जो ईमान की किताब है वो किन बातों पर मुश्तमिल है, कोई बता सकता है ऊंची आवाज में? ईमान की किताब में क्या लिखा है, इनमें कौन सी बातें हैं? ऊंची बात से कही बड़ी हो गई। वेरी गुड। 4 अनाजील में यीशु की तालीम, 5वीं किताब ईमान की किताब में हिस्ट्री है रसूलों की, शागिर्दों की, कि उन्होंने उस आयत की तकमील की। कौन सी? बस उसके नाम से सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी की जाएगी, यरूशलेम से शुरू करके सारी जमीन तक। इस आयत की तकमील, इस आयत की तामील शागिर्दों ने की जो ईमान की किताब में लिखी हुई है। ईमान की किताब की तालीम क्या है, आगे जाके आप देखेंगे, क्योंकि मेरा आज का मौजू यही है कि उस आयत की तकमील या तालीम जो कही गई थी कि सारी जमीन पे बना दी। तो तालीम, पहला वाक्य मैं जल्दी 8-9 वाक्य बयान करूंगा। आर यू रेडी? चंद वाक्य बयान करूंगा उस आयत की तालीम में जो हमने पहले पढ़ी थी, लूका 24:47। पहला नंबर है 12 मुल्कों के यहूदियों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और 12 मुल्क, 12 कौमें, 12 नेशंस एक जगह जमा थी और काम शुरू हो गया, आयत की तामील होने लगी है यरूशलेम से शुरू करके तमाम कौमों में। तो स्टार्ट में इन 12 कौमों में, 12 मुल्कों में इंजील की मुनादी हो गई। वाक्य आपको याद आ गया होगा। पहला वाक्य है पेंतिकोस्त के दिन पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ यहूदियों, तुमने जिस यीशु को मसलूब किया वो जिंदा है, वो आसमान पर है, और उसी के खून के वसीला से निजात मिलती है, उसी की सलीब के वसीला से तौबा की माफी मिलती है, गुनाहों की माफी मिलती है। और पतरस के कलाम से 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। ये पहला वाक्य है और ये ईमान की किताब के दूसरे भाग में है। बोले हालेलुया। तो शुरू हो गया काम। कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? यरूशलेम से। कहां से शुरू हुआ? क्योंकि यरूशलेम में ईद पेंतिकोस्त मनाई जा रही थी और पतरस खड़ा हुआ और उसने मुनादी की। 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। कितने मुल्कों के लोग थे उसमें? कितने मुल्कों के? आप भी बोल रहे, कितने मुल्कों के? 12 मुल्क। इसका मतलब आज की तालीम शुरू हो गई कौमों में, 12 कौमों में मुनादी हो गई और नतीजा 3000 लोग मसीह पर ईमान लाए। और जब ईमान लाए तो एक आयत पढ़िए, ईमान की किताब दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब मिल गए। काम शुरू हो गया। 2 बार गुनाहों की माफी की मुनादी कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? आवाज क्यों नहीं आ रही? कहां से शुरू हुई? पीछे से बात नहीं आई। 2 बार गुनाहों की माफी यीशु के नाम से कहां से शुरू हुई? और पहला वाक्य कितने लोग मसीह पर ईमान लाए? कितने मुल्कों के? तो मुल्कों में मुनादी शुरू हो गई। बोले हालेलुया। दूसरा वाक्य मैं थोड़ा तेज चलूंगा ताकि सारे वाक्य बयान कर सकूं। मैंने 8-9 वाक्य चुने हैं। दूसरा वाक्य वो ये है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त हैकल में जा रहे थे और हैकल के गेट पे एक लंगड़ा था जो जन्म का लंगड़ा था, जो पहले ही लंगड़ा हुआ था। उसने भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, उठ, यीशु नासरी के नाम से उठो चल फिर। और वो लंगड़ा उठ गया, चलने फिरने लगा, नाचता कूदता हम करता हुआ हैकल में चला गया। बोले हालेलुया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस बंदे को जो 40 साल की उम्र का था, जो जन्म का लंगड़ा था, जब शिफा मिली तो वो यीशु की मुनादी करना उसने शुरू कर दी। और जो लोग हैं दुनिया के, उस यरूशलेम के लोग जो है वो मुखालिफ हो गए कि ये क्या हुआ जाता है। और फिर पतरस की मुनादी हुई, पतरस ने दोबारा कलाम सुनाया और तकरीबन इस वाकया के बाद
कलीसिया की तादाद 5,000 तक हो गई। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पहले दिन कितने हो गए थे? 3,000। और पतरस के इस मौजे के बाद, जन्म के लगने के बाद तादाद कहां तक पहुंच गई? 5,000 तक हो गई और तादाद बढ़ती गई। ये वाक्य आपको मिलेगा ईमान की किताब के 4 बाब में। बोले हालेलुया। और एक और वाक्य, तीसरा वाक्य, जब मुसीबत बहुत ज्यादा फैल गई यरूशलेम में, काम यरूशलेम से शुरू होना था। जब हर तरफ मसीही नजर आने लगे, हर तरफ वो नजर आने लगे जिन्होंने तौबा की, जिनको गुनाह से माफी मिली, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, जिधर देखो वही नजर आ रहे हैं, जहां देखो यीशु का नाम लेने वाले नजर आ रहे हैं। तो यहूदी जो है परेशान हो गए और उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। इतना जुल्म किया कि स्तिफनस को शहीद कर दिया, संसार कर दिया। और पौलुस जो उस वक्त रसूल नहीं था, आम आदमी था, एक वो यहूदियों का खास आदमी था, वो घर घुसकर मसीहियों को गिरफ्तार करता था, उन्हें गोली मारता था, उन्हें गिरफ्तार करा के उन्हें कैद भी करवा देता था। और क्या हुआ? इस वाकया को देखे, जुल्म को देखे, रसूलों के सिवा, यीशु के 12 शागिर्दों के सिवा सारे ईमानदार दूसरे इलाकों में भाग गए। और जब भाग गए तो फिलिप्पस जो मुबश्शिर था वो सामरिया को चला गया। ये वाकया आपको मिलेगा ईमान की किताब के 8वें बाब में। और जब वो सामरिया में गया, उसने कहा, ऐ सामरिया के लोगों सुन लो, यीशु मसीह खुद तुम्हारे शहर में आया था, सामरिया की बुनियादी से आया था, लेकिन तब तो यीशु मसलूब नहीं हुआ था। उसके बाद यीशु मसलूब हुआ, आसमान में चला गया और आज यीशु आसमान में है। मैं उसका गवाह हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तौबा करो, यीशु के नाम को कबूल करो, अपने नाम से माफी हासिल करो, यीशु के नाम को कबूल करो। तो लिखा है कि सामरिया के बेशुमार लोग तौबा करके, निजात पाके, पानी का बपतिस्मा लेके, यीशु की मुरादी को कबूल करके मसीह पर ईमान ले आए। बोले हालेलुया। काम शुरू हो गया सामरिया में, प्रेज द लॉर्ड। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, लंगड़े चलने लगे, कोड़ी पाक साफ होने लगे फिलिप्पस की मुरादी से सामरिया में। और फिर इसके अलावा हर तरह के बीमार। और एक खास बात लिखी है जो आपने कभी गौर नहीं किया, खुदा उसके वसीला से अजीब मौजज़े करता था जिनका जिक्र ही नहीं है। अजीब मौजज़ा क्या हो सकता है? एक आदमी पैदा ही ऐसा हुआ, उसकी एक टांग ही छोटी है तो वो ठीक हो गई हो। अजीब मौजज़े का क्या मतलब है? आंख के अंदर खौल है, सिर्फ आंख ही नहीं है, उसने दुआ की तो वो ठीक हो गया। अजीब मौजज़े। मुझे नहीं पता शब्द से हवा पानी को थमा दिया हो, मुर्दे जिंदा किया हो, लेकिन क्या ये अजीब वाकयात रुनवा हुए। किसके वसीला से? बोलिए किसके वसीला से? ये भाषा में जी किसके वसीला से? और कहां? सामरिया में काम शुरू हो गया है। और वहां एक जादूगर था जिसका नाम था शमौन, और उसको कहते थे ये भी खुदा की पहुंची हुई शख्सियत है। जादूगर ने जादू से तौबा कर ली और यीशु को कबूल किया, गुनाहों की माफी मिल गई और उसे पानी का बपतिस्मा दिया। बोले हालेलुया। यही फिलिप्पस सामरिया में था, फरिश्ता नजर आया, फरिश्ते ने कहा उठ, जंगल में चला जा, उस राह पे चला जा जो यरूशलेम से जो सड़क गाजा को जाती है, उस सड़क पे चला जा। और वो चला गया भागता हुआ। और जब वहां गया तो उसने देखा, क्या देखा? एक रथ है, रथ होती है 2 घोड़ों पे जो गाड़ी चलती है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, वो जा रहा है उस रथ के ऊपर। इसने जल्दी की, भाग कर रथ के पास चला गया और उस जाकिर से कहता है, क्योंकि वो कोई किताब पढ़ रहा था, उसने कहा, जो बंदा बैठा था उसका नाम था, नाम तो लिखा नहीं है, उसका नाम था हबशी ख्वाजा। क्या नाम था? बोलिए क्या नाम था? नाम नहीं है लेकिन लिखा यही है। तो क्या लिखा है? कौन था? हबशी ख्वाजा। आज सारे लोग, काले लोगों को जितने अफ्रीकन है उनको हबशी कहते हैं, गलत है। सारे अफ्रीकन, सारे काले हबशी नहीं है। हबशा एक मुल्क का नाम था और भी है। हम तो वो बंदा हबशा का रहने वाला था, इसलिए हबशी। मैं लाहौर में रहता हूँ इसलिए लाहौरी। तो वो हबशा का रहने वाला था इसलिए कहा गया हबशी। इसलिए सारे काले हबशी नहीं है, सिर्फ हबशा में रहने वाले। आज इसका नाम जो हबशा नहीं है, इसका नाम इथोपिया है। तो इथोपिया का रहने वाला एक शख्स जो ख्वाजा सरा था, वो लूका यसाया की किताब का 3 बाब पढ़ रहा था और फिलिप्पस उसके
उसके पास हो गया, पास चला गया, कहने लगा भाई जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है। उसने कहा भाई अगर जब तक कोई समझाए नहीं तो मैं क्या समझूंगा। उसने कहा अंदर आ जा अंदर। वो रथ में साथ ही बैठ गया। फिलिप्पस ने कलाम सुनाना शुरू किया, रथ में बैठकर वो गाड़ी चलती गई और वो सुनाता चला गया और उसने बताया यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, जी उठा, आसमान में है, उसके नाम से मैं तुझे तौबा का हुक्म देता हूं, क्योंकि तौबा से उसी के नाम से है, उसके नाम से गुनाहों की माफी मिलती है। यीशु के कफारे को कबूल कर जो मर गया। और हबशी ने क्या किया? उसने कहा ऐ खुदावंद यीशु मसीह मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मैं तौबा करता हूं, मेरे दिल को पाक कर, मुझे गुनाहों से माफी दे। और बातें करते करते वो चलते चलते लिखा है पानी की जगह पर पहुंचे। जब पानी नजर आए कोई दरिया होगा, नदी होगी, कोई नहर होगी, तो जब वहां पहुंचे तो हबशी फौजा ने कहा देख तारीफ तो मैंने कबूल कर ली, अब मुझे पानी के बपतिस्मे से कौन सी चीज रोकती है? याद रखे पानी का बपतिस्मा जो बाइबल में है ये तौबा गुनाहों की माफी के बाद अगला कदम है। इससे आप मुझे कौन सी चीज रोकती है? उसने कहा कोई नहीं रोकती, अगर खुदा को कबूल किया तो ले ले। दोनों पानी में उतर गए कि पानी के बाहर या पानी में उतर गए, किनारे में नहीं उतर गए। और फिलिप्पस ने हबशी फौजा को बपतिस्मा दिया, खुशी करते करते चला गया। अब सुनिए, मैंने कहा था दूर की बात, अब हबशी फौजा जो हबशा का रहने वाला था इथियोपिया में पहुंचा, जो मौजूदा नाम है, और उसकी वजह से इथियोपिया में यीशु मसीह का नाम फैल गया। कौमों तक पहुंच गए, यरूशलेम से निकले और अमनादी फैलती चली जा रही है। इथियोपिया अफ्रीका में चला गया और इथियोपिया में ये शख्स बड़ा अहम शख्स था, ये बड़े अहम ओहदे में था, ये वजीर था और इसके वसीले से बड़ा काम हुआ। ये पहला क्रिश्चियन है अफ्रीका का। अगला वाकया, और ये बड़ा फेमस है, कितनों ने पौलुस का नाम सुना है? तो मैं पौलुस के बारे में बताने लगा। पौलुस जब तक मसीह पर ईमान नहीं लाया था वो क्या करता था? वो मसीहों पे जुल्म करता था, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। वो घर घर घुसकर मसीह औरतों को, मर्दों को, बच्चों को घोड़े भी पिटवाता था, उनको बांध के ले जाता भी था, कत्ल भी कराता था, गिरफ्तार भी करा देता था। एक दिन वो जा रहा था दमिश्क की तरफ, घोड़े पे चढ़ के, घोड़े पे था, दमिश्क की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्या आता था उसका। चलते चलते उसको एक नूर नजर आया, एक आवाज नजर आई, नूर नजर आया तो उसकी आंखें झुंझा गई, अंधा हो गया। और आवाज आई ऐ साउल, उसका पुराना नाम साउल था, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा ऐ खुदावंद तू कौन है? क्योंकि आवाज आ रही थी, शक्ल नजर नहीं आ रही थी। ऐ खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा मैं यीशु हूं, क्योंकि तू मुझे सताता है। जेड़ा मसीहा नु सतांदा है वो यीशु मसीह नु सतांदा है। बोले हालेलुया। उसने कहा मैं खुदावंद जिसे तू सताता है। और फिर उसने तौबा की, उसने तौबा की, निजात पाई, गुनाहों की माफी हासिल की। और उसके बाद उसे अंधे को, क्योंकि अंधा था, अंधे को पकड़ के एक घर में ले गए, दूसरे शहर में, निगरानी में ले गए। और सुने, खुदा के पाक रूह ने कहा ए हननिया, एक शख्स हननिया नाम ईमानदार था, उससे कहा ए हननिया उस शहर में जा और वहां एक शख्स तुझे मिलेगा जिसका नाम साउल है, वो अंधा है, उसे निजात पा दी है, उसकी तौबा की माफी उसको हो गई है, गुनाह माफ हो गए, उसके पास जा, वो अंधा है। और वो ढल गया, कहता है खुदा तेरे नहीं पता, बोले यरूशलेम तबाही दे देती है, वो तो गिरफ्तार करवाता है। उसने कहा नहीं। अब बोलिए अच्छा मेरा चुना हुआ वसीला है। हननिया क्या, उसने उसके साथ में हाथ रखे और कहा, बल्कि उसकी आंखों में हाथ रखे, उसकी गनाई वापस आ गई। और उसके बाद एक आयत में आपके सामने पढ़ता हूं, इमाम की किताब 22वां सोलहवीं है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेके अपने गुनाहों को धो डाल। हननिया ने कहा अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। कई लोग तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, कहते बपतिस्मा जल्दी नहीं लेना। और पता नहीं कुछ चर्च भी जानबूझ के डिले करते रहते हैं, जानबूझ के। मजबूरी तो कोई मजबूरी है ना, कि कोई मजबूरी हो सकती है कि बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा, कुछ जानबूझ के कहते सर ना हो ट्रेंड हो जाए, निजात पाने के बाद हो जरा आगे चला जाए, हो तरक्की कर ले, हो दुआस तरक्की करे। जी नहीं, ये शर्त नहीं है। तौबा के बाद फौरन
मैं तैयार हूँ। वो कहता उसने कहा क्यों देर करता है? और फिलिप्पुस ने भी यही कहा था, ठीक है अगर तू कबूल कर दे तो आप बपतिस्मा ले फौरन, और 3000 को भी उसी दिन बपतिस्मा दिया गया था। इसको भी फौरन बपतिस्मा इसने दिया। और फिर मनादी पता कहां तक पहुंच गई? एक मुल्क में नहीं। पौलुस ने 3 मिशनरी सफर किए और चौथा सफर रोम को किया। कई मुल्कों में मनादी करता चला गया। एक मुल्क मनादी की, उसके एक शहर में मनादी की, वहां खादम मुकर्रम किए। दूसरे मुल्क में चला गया, वहां तौबा की मनादी की, वहां गुनाहों की माफी की मनादी की, वहां कलीसिया कायम हो गई। तीसरे मुल्क में चला गया, चौथे मुल्क में, पांचवें मुल्क में, छठे मुल्क में, और वो मनादी करता ही चला गया और मुल्कों में, कौमों में अजीब की मनादी होती चली गई। बोले हालेलुया। सातवां वाक्य, कर्नेलियस एक गोरा था, इटली का, और ये इतालिया से नया आया था। और जब वो अपने घर में था, सूबेदार था फौज का, तो इसके बारे में लिखा बड़ा खुदापरस्त था, बड़ा नेक था। और खुदा ने पतरस से कहा अब गैर कौमों में भी जा। और यहाँ पे गैर कौम के लिए वो ये मतलब नहीं कि दूसरे मुल्कों में, यहाँ पे गैर कौमों का मतलब है यहूदियों को छोड़ के और मजहबों में भी जा। और पतरस गया और जाकर कर्नेलियस के घर में, जो काफी घर वाले जमा थे और लोग भी जमा थे, उसने कहा यीशु मसीह जो मर गया था वो जिंदा है, वो आसमान पे है, उसने रूह कुछ भेजा है, बस तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, यीशु के नाम से भूल जाओ। तो अभी वो मनादी कर ही रहा था, लोगों ने दिल में तौबा कर ली, अरबी कलाम सुना रहा था, तो जितने लोग वहां थे वो क्या समाने बोलने लगते। बोले हालेलुया। आपके लिए ये क्या हुआ? पानी का तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या ख्याल है पानी का बपतिस्मा में ज्यादा जरूरी नहीं है? नहीं लिया। पादू को बपतिस्मा मिल गया। जब पादू को बपतिस्मा मिला तो पतरस ने कहा अब इन्हें पानी का बपतिस्मा भी दिया जाए। वो स्टेप छूट गया। इसका मतलब अगर आपने निजात पाई है, अगर तौबा की है, अगर गुनाह माफ हो गए हैं, आप पादू के लिए ठहरना चाहते हैं, रूह कुछ मिल सकता है, लेकिन पानी के बपतिस्मे के बगैर गुजारा नहीं है। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए बपतिस्मा ले ना ले वो जहन्नम में जाएगा। ये बाइबल की तारीफ है। तो कर्नेलियस का वाकया आपको मिलेगा ईमान की किताब के 10वें वाक्य। और एक और वाकया मैंने कहा 8 फिर 8वां वाकया नोट करते जा रहे हैं। 8वां वाकया, एक औरत, वैसे तो 3000 लोग जो मसीह पर ईमान लाए थे उनमें भी औरतें भी थी, लेकिन ये खास बात है। पौलुस रसूल अपने मिशनरी सफर के दौरान, जो उसका दूसरा मिशनरी सफर है, फिलिप्पी के इलाके में पहुंचा। और जब वो फिलिप्पी के इलाके में पहुंचा तो फिलिप्पी शहर के बाहर फाटक पे पौलुस और उसके साथी वहां खड़े थे, दुआ करने की जगह ढूंढ रहे थे, या कोई अच्छी जगह मिल जाए दुआ करें। तो उन्हें क्या मिला? चंद औरतें नजर आई नदी के किनारे। तो आप औरतों के पास चले गए और उन्होंने कहा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने मनादी की, वो हुआ, दफन हुआ, ठीक था, उसने आसमान से रूह भेजा, हम उसके गवाह हैं। यीशु को कबूल करो, तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। और उन्होंने से बेशुमार जो औरतें थी उन्होंने कबूल किया, लेकिन एक का नाम लिखा है लिदिया, उर्दू में लिखा है लुदिया, इंग्लिश में लिखा है लिदिया। तो लिदिया नाम एक औरत थी, उसका दिल खुदा ने खोला, उसने जल्दी से तौबा की, निजात पाई, अपने घर वालों को बनाया, उसके घर वालों ने उससे वेल में बपतिस्मा लिया तौबा के फौरन बाद। और सुने मनादी करते करते लिदिया, जो मौजूदा टर्की की रहने वाली थी, लेकिन इस वक्त वो जो जहाँ पे मौजूद थी वो यूनान का इलाका था, यूनान के शिमाली यूनान में। इसका तो यूरोप में पहुंच गए, पहले अफ्रीका में पहुंचे, अब यूनान जो ग्रीस है यूरोप में, यूरोप का काम चल गया। हालेलुया। फिलिप्पी जो सदर मुकाम था उस वक्त ये यूनान के इलाके में था। और यहाँ इसका मतलब कलाम यरूशलेम से शुरू कर दी। तो यूरोप में पहली खातून जिसके जिंदगी में काम हुआ कौन सी थी? सुने, और ये वाक्या मिलेगा आपको ईमान की किताब के 16वें बाब में। और सुनिए क्या हुआ। उसने बपतिस्मा लिया
और पौलुस और उसके साथियों को कई दिन तक अपने घर में ठहराया। ये बिजनेस वुमेन थी, इसका एक कारोबार था। एक कपड़ा है जो किरमस नाम का होता है। उस जमाने में जो बादशाह थे, कायन थे, जो अमीर लोग थे, वो किरमसी नाम के कपड़े पहनते थे और ये किरमसी नाम के कपड़े बेचती थी। इसका बिजनेस था। पता नहीं कहां से किस रूप से आती थी। बहनों, आप ये बिजनेस करना चाहते हो, करें, कोई बात नहीं। अगर काम नहीं मिलता तो बिजनेस कर, तो ये करती थी। और इस बिजनेस के वसीला से वो पौलुस की सपोर्टर बन गई और कहने लगी, अब पौलुस और आप उनके साथियों से कहा, अब मैं तुम्हें माली मदद दिया करूंगी, जाओ जाकर सारी जगत में मनादी करो और मैं तुम्हारी मददगार हूं। और उनको माली सपोर्ट देती थी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और ये काम बढ़ता चला गया। फिर 19वीं सदी 20वीं सदी में आ गए। 20वीं सदी में पहुंचे, यानी ये मिली ग्राम 50 साल में उसकी डेथ हुई है। उसने दुनिया में तहलका मचा दिया, अमेरिका को हरा के रख दिया। तब और प्रचार की कलाम की तालीम दी और अमेरिका बदल के रख दिया। बोले हालेलुया। उसके बाद अभी इसी सदी की बात है, रेनहार्ड बॉन्की जो जर्मन था लेकिन अमेरिका में रहता था, उसने अफ्रीका में काम शुरू किया और अफ्रीका में नाइजीरिया में उसने मनादी शुरू की। नाइजीरिया को बदल के रख दिया। हालेलुया। यरूशलेम से शुरू होके ये काम फैलता चला गया और उसके बाद कहनी अभी तक खुदा का खादम जिंदा है, दुनिया में अंजील की बशारत कर रहा है। और उसके अलावा पूरी दुनिया में भी बेशुमार लोग हैं जो मुल्कों में जा रहे हैं। कोरिया के मिशनरी जा रहे हैं, ब्राजील के मिशनरी जा रहे हैं, अमेरिका के मिशनरी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इसके अलावा चाइना के मिशनरी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तानी बहुत से लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाके मसीह की मनादी कर रहे हैं और दो बार गुनाहों की माफी की मनादी कर रहे हैं। आपसे पूछता हूं, आपका क्या करता है? आपने क्या किया है? कितने लोगों में दो बार गुनाहों की माफी की मनादी की है? मैंने की है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं, कोई खास नहीं की। बहुत से लोग मसीह पर ईमान लाए हैं मेरी मनादी से, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, अभी भी शर्मसार हूं, कुछ नहीं किया। और उसने ये कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसने इतना काम किया, मैंने तो शायद उसके मुकाबले में 1% भी नहीं किया, 0.0005 भी नहीं किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बात यह है, कुछ तो करें, स्टार्ट तो करें, घर से शुरू करें, बहन भाइयों से शुरू करें, अंजील की मनादी करें, तौबा की मनादी करें, पानी के बपतिस्मे की तालीम दें ताकि कलीसिया बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह जल्द आने वाला है।